Hello everyone. Today we are going to learn a new chapter, that is exponents and power. What is an exponent? An exponent tells us how many times a number is multiplied by itself. For example, let us say this example of 2. We have multiplied 2 here how many times? 1 time, 2 time, 3 time and 4 time. Okay? So here we have multiplied this 2 4 times and we have got the answer as 32. So when we multiply a number by itself, that time we call the number as exponent. Alright, now let us learn what is 2 raised to 5. Now here 2, this number 2 we call it as base, and number 5 we will call it as exponent, or we call it as index also. Now let us learn how to read the number. Alright, now to read the number we read it as 2 to the power 5, or you can also read it as 2 raised to the power 5, or simply 2 power 5. Okay, now note that when you multiply this 2 raised to 5 times, what answer do you get? We get the answer, that is 32. That means that this 2 raised to the power 5 is the exponential form of 32. Okay, I repeat myself again. This 2 power 5 is equal to 32. Means what? When you multiply 2 5 times, all right, what answer you will get? You will get the answer, that is 32. So this is called as a exponential form of 32. All right, this number. Clear till here? Now let us see the exercise. All your doubts will be clear. Now in the first exercise, exercise 4.1, the first one is in the expression 3 raised to 7, base is dash and exponent is dash. So you have to tell me now, this is 3 is to 7. Now from this, which is the base? So yes, 3 is our base. So we will write 3 here, and exponent is 7. So we will write exponent 7. Alright. Now the next. In the expression minus 7 power 5, base is equal to, what will come as your base? 7 will come as a base, and here 5 will be the exponent. For this 5, we call exponent also, and we call index also. Clear? Now here in the expression 2 upon 5 power 11, base is 2 upon 5 and exponent is 11. Okay? If base is 6 and exponent is 8, this exponential form will be what? Now here there is a twist in the question. Alright, and they are telling that if this 6 base is 6, now for example here the 6 is base and the exponent is what? 8, then what will be the exponential form? So the exponential form will be 6 raised to 8. Clear? Understood how to do? Alright. Now, question number 2. Find the value of the following. First is 2 raised to the power 6. So now, let us solve this first sum. I will write down the question. That is, first question is, that is 2 रेज टू द पावर 6. ना यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, और वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? आप 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे. जैसे कि ये 1 टाइम हुआ, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम. ठीक है. सो टोटल मैंने ये 2 को कितने बार लिखा? 6 टाइम लिखा. ठीक है. और अभी आपका इसका आंसर फाइंड आउट करना है. आप कैसे आंसर फाइंड आउट करोगे? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 2 ज़ा आपका आंसर आ जाएगा 64. क्लियर? समझ में आया? सो दिस इन दिस वे वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू द पावर 6. ठीक है. लेट अस सी द सेकंड इज 5 रेज टू द पावर 5. सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 5 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. ठीक है. नाउ यू हैव टू बी वेरी क्विक इन योर कैलकुलेशन. दैट इज 5 5 ज़ा आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25. फिर 25 5 ज़ा विल बी 125. ठीक है. फिर 125 मल्टीप्लाई बाय आपको 5 करना पड़ेगा. अगेन दैट टाइम यू विल गेट द आंसर, दैट इज 625. वे वापस 625 को आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा. सो जब आप मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे, यू विल गेट द आंसर, दैट इज 3125. सो योर फाइनल आंसर हियर इज 3125. क्लियर? कैसे किया है? लेट अस डू द third sum. Okay, now your third sum is minus 6 raised to the power 4. So I will just write the question here first, that is minus 6 raised to the power 4. So now what you have to do? You have to multiply this minus 6 how many times? 4 times. So I will put it down in the bracket. This is 1 time, 2 times, 3 times, and this is 4 times. So I have written 6 how many times? 4 times. Chalo. Now, before solving the sums, I want to tell you one thing. कि आप जब भी ना
ये माइनस साइन रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी यहाँ पे एक ऑड नंबर आता है हमेशा आपका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव में। पर जब भी यहाँ पे ऊपर दैट इज योर इंडेक्स और आप एक्सपोनेंट भी कह सकते हो, वो अगर एक ऑड नंबर है तो आंसर विल बी ऑलवेज इन नेगेटिव। ओके, आई रिपीट माई सेल्फ अगेन। अगर ऑड नंबर है, ठीक है, इंडेक्स अगर एक ऑड नंबर है तो आंसर विल बी इन नेगेटिव। पर अगर इंडेक्स या एक्सपोनेंट एक अगर इवन नंबर है, इवन नंबर कौन से है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, 10, 12 एंड सो ऑन, ठीक है, ये सब क्या है, इवन नंबर है। तो अगर इंडेक्स अगर एक इवन नंबर है तो द आंसर विल बी ऑलवेज इन पॉजिटिव, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस सम तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 6 multiplied by 6, your answer will be 36. Multiply by 6, your answer will be 126. Now 126 multiplied by 6, your answer will be 1296. और यहाँ पे एक इवन नंबर है तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव ही आ जाएगी, प्लस की, ठीक है, क्लियर? Alright, in this way we have finished solving the first 3 sums. Now let us solve the next sum, that is fraction का है 2. I will write down your question, 2/3 रेज टू द पावर ऑफ 4। अभी ये भी सेम ही करना है, आपको क्या करना है, आपको ये 2/3 जो है वो कितने टाइम्स लिखना है, 4 टाइम्स लिखना है। ऑलराइट, 2 टाइम्स लिख के हुआ, ये हो गया थर्ड टाइम, अभी ये हो जाएगा फोर्थ टाइम। ऑलराइट, अभी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2 2 4, 4 2 8, 8 2 क्या हुआ आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 16। ऑलराइट, अभी 3 3 9, 9 3 27 और 27 3 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 81। क्लियर, कैसे सॉल्व किया फोर्थ सम? ऑलराइट, नाउ वी विल डू द फिफ्थ सम। फिफ्थ सम इज -2/3 raised to the power 5. So I will write down here, that is -2/3 raised to the power 5. तो ये भी सेम है, आपको क्या करना है, -2/3 कितने बार लिखना है, आप 5 टाइम्स लिखोगे। एक टाइम लिख के हुआ, फिर दिस इज अ सेकेंड टाइम, फिर दिस इज अ थर्ड टाइम, फिर दिस इज अ फोर्थ टाइम एंड नाउ दिस इज अ फिफ्थ टाइम, ठीक है। नाउ let us multiply 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 and 16 2s are is 32. Alright, तो ऊपर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 32. Alright, now 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 3s are 243. So आपका 243 will be your answer here. But now this number 5 इंडेक्स जो है हमारा वो एक ऑड नंबर है, इसके लिए हम लोग को यहाँ पे माइनस की साइन लगानी पड़ेगी। सो योर फाइनल आंसर इज -32/243। क्लियर, समझ में आया? नाउ लेट अस डू द लास्ट सम। नाउ द लास्ट सम इज -2 raised to the power 9. So I will just write the question, that is sixth one, -2 raised to the power 9, ठीक है। अभी -2 को आप कितने बार लिखोगे, 9 टाइम। सो लेट अस राइट -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, फोर्थ टाइम हो गया, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, सेवन टाइम, 8 टाइम एंड 9 टाइम, ठीक है। डन, चलो नाउ वी मल्टीप्लाई, दैट इज 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are will be 64, 64 2s are will be 128. Now 128 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे you will get the answer, that is 256. अभी 256 को वापस अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे you will get the answer, that is 512. सो बेसिकली आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 512. बट दिस 9 ये क्या है, एक इंडेक्स नंबर है और एक ऑड नंबर है, दैट इज व्हाई यू हैव टू पुट अ माइनस साइन हियर। क्लियर, समझ में आया? इन दिस वे वी हैव फिनिश solving the second question. Now let us see what is the third question. Now the third question is express the following in exponential form. तो आपको क्या करना है, इनको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले देखते हैं हम लोग 6 वैसे के वैसे लिखेंगे और यहाँ पे कितने इंडेक्स नंबर वी हैव टू फाइंड। तो इंडेक्स नंबर के लिए वी हैव टू काउंट कि हम लोग ने 6 कितने टाइम्स लिखा है। सो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम्स लिखा हुआ है। तो योर आंसर विल बी 6 रेज टू द पावर 5, 6 रेज टू द पावर 5, ठीक है, क्लियर। Now let us see the second one. अभी second one भी t है, so what will be your base? Your base will be t, और t को कितने बार लिखा हुआ है, 1 2 और 3 टाइम्स लिखा हुआ है। So here your answer will be t to the power raised to the power 3, ठीक है। Now यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, so first we will write 2 as a base, और 2 कितने टाइम लिखा हुआ है, 2 टाइम्स लिखा हुआ है।
सो वी आर गोइंग टू राइट हियर 2 ऑन द टॉप, ठीक है, पर उसके साथ ए भी है. सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस? ए कैसे हम लोग लिखेंगे? ए हम लोग कैसे लिखेंगे? ए कितना टाइम है? 4 टाइम्स. सो फर्स्ट वी विल राइट ए एंड देन ए 4 टाइम्स है, तो वी आर गोइंग टू राइट हियर 4. क्लियर? नाउ यहाँ पे भी देखते हैं कि 3a है, तो व्हाट विल बी योर आंसर हियर? ए कितने रहेंगे? रेज टू द पावर ऑफ 3. फिर सी कितने है? 4 है ना, तो सी रेज टू द पावर 4 और डी कितने? 1. सो वी विल राइट डी 1 टाइम. दिस इज योर आंसर. Understood till here? Okay. Now let us do the question number 4th. Simplify the following. The first one is 7 multiplied by 10 raised to the power 3. So I have written down the question here. Now here power 10 is there and it is written raised to the power 3. Okay. So 7 we will write only one time. And now 10 we have to write 3 times. That is 1, 2 and 3. Alright. So now 7 ones is 7. And how many zeros are there? 1, 2 and 3 zeros. So we are going to directly put here 3 zeros. If you want to multiply, you can multiply also. That is 7 tens are 70. 70 tens are 100. 100 tens are 7,000. Okay? So this will 7,000 will be your answer. Now here the next one is, that is 2 raised to the power 5. So you're going to write 2. How many times you will write 2? 5 times. That is 1 time. Multiply by 2. 3, 4 and 5. You have written 2 5 times and now you have to write 9. So now let us multiply. That is 2 twos are 4, 4 twos are 8, 8 twos are 16, 16 twos are 32 and 32 if you will multiply by 9, you will get the answer, that is 288. So here your answer is 288. Clear? Chalo, let us do the next time. Now this is 3 raised to the power 3. So how many times you are going to write 3? You will write 3 times. Alright. Now here the next number is 10 raised to the power 4. So 10, how many times you will write? 4 times. That is, this is second time, third time and fourth time. Alright. So now let us multiply. That is 3 multiplied by 3. You will get the answer as 9. And 9 multiplied by 3. You will get the answer, that is 27. Clear? Now here 27 ones are is 27. You will write as it is. कितने zeros है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4. So directly write 4 zeros. Alright. Clear with this exercise? चलो, let us go to the next exercise. Next exercise is also the same one, that is simplify the following. Same ही करना है जैसे हम लोग ने exercise 4 किया हुआ है, same. So I have already written down the question here, but ये जो है वो नेगेटिव में है. नेगेटिव में हम लोग ने सीखा है कि जब भी नंबर्स ऑड नंबर्स में रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ. यहाँ पे अगर -3 यहाँ पे रहेगा, मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3. अभी ये जो -3 है वो हम लोग ने कितने टाइम्स लिया है? यहाँ पे माइनस कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है. 3 इज अ ऑड नंबर. तो जब भी ऐसे माइनस के साइन ऑड नंबर में आते हैं, ऑड नंबर्स कौन से हैं? जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया. ठीक है. जब भी माइनस साइन ये रेशियो में आते हैं, दैट इज 3 टाइम्स आते हैं, 5 टाइम्स आते हैं, 7 टाइम्स आते हैं, 9 टाइम्स आते हैं, तभी भी आंसर हमेशा क्या रहता है? माइनस में ही रहता है. ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. ऑलराइट. चलो नाउ लेट अस डू द सम. दैट इज फर्स्ट क्या? -3. तो वी विल राइट -3. इसको ब्रैकेट में लिखेंगे. मल्टीप्लाई बाय -2. कितने टाइम्स? ये -2 जो है वो कितने टाइम हम लोग को लिखना है? 3 टाइम्स. सो विल राइट 3 टाइम्स. दैट इज -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट इज लेट अस मल्टीप्लाई. ठीक है. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6. 6 2s are 12. 12 2s are 24. So we will get the answer here, that is 24. Alright. पर अभी देखते हैं कि नेगेटिव साइन कितने टाइम्स है. तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम है. नाउ 4 इज एन इवन नंबर, तो यहाँ पे दिस आंसर विल बी इन पॉजिटिव. क्लियर? समझ में? लेट अस डू द सेकेंड सम नाउ. ना यहाँ पे जो -3 है, ठीक है, वो कितने टाइम है? 2 टाइम्स है. तो वी विल राइट या -3 2 टाइम्स. दैट इज -3 मल्टीप्लाई बाय -3. ठीक है. और ये जो -5 है वो कितने बार है? 2 टाइम. रेज टू द पावर 2. सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट 2 टाइम्स. क्लियर टिल हियर? ऑलराइट. नाउ लेट अस मल्टीप्लाई. सो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट क्या आ जाएगा? 3 3s are 9. ऑलराइट. फिर 9 को 5 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर, दैट इज 9 5s are 45. एंड 45 को जब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर, दैट इज 225. सो आई विल राइट द आंसर, दैट इज 225. क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? कैसे किया हम लोग ने? 3 3s are 9, 9 5s are किया, दैट इज 45. एंड देन 45 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 225. क्लियर? नाउ यहाँ पे कितने नेगेटिव साइंस है? 4 नेगेटिव साइंस है यहाँ पे. ठीक है. एंड नेगेटिव 4 साइंस है. 4 क्या है? इवन नंबर है. सो द आंसर विल बी इन पॉजिटिव. क्लियर? चलो लेट अस डू द थर्ड वन नाउ. द थर्ड वन यहाँ पे -2 है. -2 कितने बार है? 3 टाइम्स. सो आई विल राइट इट -2. आई विल राइट 3 टाइम्स. ऑलराइट. देन -10 कितने बार है? 4 टाइम्स. सो आई विल राइट -10 4 टाइम्स.
Alright, चलो, I have finished writing. Now let us multiply. That is 2 2s are 4, 4 2s are 8. So first what I will do, I will write 8 here. फिर मैं काउंट करूँगी कि ये 10 कितने हैं, मतलब जीरोस कितने हैं. So 1 2 3 4, 4 0 है. So I will directly write here 4 zeros. Alright, so this is my answer. That is 80,000. अभी देखते हैं कि साइंस देखते हैं. तो अगर आप देखोगे तो टोटल दिस 3 + 4 मतलब 7 साइंस होंगे. चलो लेट अस काउंट देन ऑल्सो. ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7 इज एन ऑड नंबर. इसके लिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस में. क्लियर? लेट अस डू नाउ द फोर्थ सम. अभी फोर्थ सम क्या है कि -1 जो है, ओके, वो आपको मल्टीप्लाई करना है 9 टाइम. तो अगर ये -4 को -1 को एक समय यहाँ पे करके दिखा दूँ, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 टाइम, फिर भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा. तो आप चाहिए तो ऐसा लिख सकते हो, या तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, -1 आंसर लिख सकते हो. ठीक है, सो आई हैव रिटन इट डाउन. लेट मी सी हाउ मेनी टाइम्स आई हैव रिटन इट डाउन. 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आई हैव रिटन डाउन एंड दिस इज 9 1. ठीक है, सो 1 1 जा 1 1 जा 1 जा, आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा. ओके, बिकॉज 1 × 1 क्या रहेगा, 1 ही रहेगा. पर यहाँ पे हम लोग को देखना है कि ये जो 9 है दैट इज अ ऑड नंबर. इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा. सो इफ यू वांट यू कैन सॉल्व एंड राइट दिस, बिकॉज 9 एक छोटा नंबर है. या तो आप डायरेक्टली भी ऐसे -1 लिखेंगे तो भी आंसर करेक्ट ही रहेगा. ठीक है, क्लियर? चलो, वी विल डू द नेक्स्ट वन नाउ. नाउ दिस नेक्स्ट वन इज 25 रेज टू द पावर 2. सो 25 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे. पर नाउ यू टेल मी, इज इट पॉसिबल टू राइट दिस -1 31 टाइम? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. सो व्हाट वी विल डू इज, हम लोग यहाँ पे -31 ऐसे लिखेंगे, -1 और रेज टू द पावर ऑफ 31 ऐसे ही लिखेंगे. या आप चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ पे -1 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप 31 इज एन ऑड नंबर. ठीक है, तो अगर -1 को अगर आपको ये सॉल्व करना हो तो बेसिकली इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर इज -1 ओनली. ठीक है, तो डायरेक्टली भी आप यहाँ पे ऐसे -1 लिख सकते हो. क्लियर? समझ में आया? ऑलराइट, चलो, नाउ वी विल डू द सम. सो 25 मल्टीप्लाई बाय 25, जब आप 25 को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर दैट इज 625. और जब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 600 को जब आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर दैट इज -625. क्लियर? समझ में आया? ऑलराइट, ठीक है, चलो लेट अस डू द नेक्स्ट सम. ना यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट बिकॉज ये 31 को -1 को 31 टाइम मल्टीप्लाई करना है. डोंट गेट कंफ्यूज. whenever you multiply 1 by the number itself you will get 1 only. 1 1 is 1 only. ठीक है, सिर्फ आपको देखना है कि ये अगर 1 के ऊपर अगर एक इवन नंबर है तो आंसर आपका पॉजिटिव में आ जाएगा. सिर्फ एक 1 के ऊपर अगर एक ऑड नंबर है तो आंसर आपका माइनस में आ जाएगा. सिर्फ ये आपको ध्यान में रखना है. क्लियर? चलो लेट अस डू द नेक्स्ट वन नाउ. नाउ द नेक्स्ट वन क्या है, 2 4 raised to the power 2. So 4 I will write 2 times. ठीक है, then 3 also how many times I have to write, 3 times I will write. फिर यहाँ पे वापस आ गया, that is -1 raised to the power 22. So now 22 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं, -1 को 22 टाइम्स हम लोग नहीं लिख सकते हैं, पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज जब -1 22 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट आंसर यू विल गेट आंसर 1 ओनली. ठीक है, पर क्या रहेगा, सिंस दिस 22 इज एन इवन नंबर, यहाँ पे साइन क्या आ जाएगी, पॉजिटिव की आ जाएगी. ठीक है, सो आई विल डायरेक्टली राइट द आंसर हियर, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 1. क्लियर? नाउ 4 4 इज 16. 4 4 16 और 16 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 16 16 को आप जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर दैट इज 48. वापस से 48 को आपको क्या करना पड़ेगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यू विल गेट द आंसर हियर एज 144. वापस से 144 को आपको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट द आंसर दैट इज 432. और 432 मल्टीप्लाई बाय दिस 1 यू विल गेट द आंसर दैट इज 432 इज योर फाइनल आंसर. क्लियर? समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5. चलो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. 6, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पे 4 रेज टू द पावर 3 है और 3 रेज टू द पावर 4 है. ठीक है, तो हम लोग को देखना है वेदर दिस नंबर इज ग्रेटर और दिस नंबर इज ग्रेटर. ऑलराइट, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आई विल शो यू हाउ टू डू. लेट मी राइट द क्वेश्चन दैट इज 4 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 4. इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दिस 4 रेज टू द पावर 3. ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4. ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं, और ये 3 रेज टू द पावर को भी हम लोग 4 टाइम्स लिखेंगे. एंड वंस वी हैव फिनिश राइटिंग, अभी हम लोग इनको सॉल्व करेंगे. दैट इज 4 4 इज 16, 16 4 इज 64. तो यहाँ पे आंसर आया 64. ऑलराइट, नाउ इसको करते हैं, दैट इज 3 3 9
9 3 ज़ा 27 एंड 27 3 ज़ा 81। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 81। अभी आपको मुझे बताना है कि दिस 64 बड़ा है या ये 84 बड़ा है। ऑब्वियसली 84 बड़ा है, करेक्ट। सो द ग्रेटर साइन विल बी हियर। सो इन शॉर्ट यहाँ पे लिखेंगे 4 रेज टू द पावर 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 रेज टू द पावर 4। विच इज ग्रेटर? दिस वन इज ग्रेटर। तो यहाँ पे ग्रेटर की साइन आ जाएगी। क्लियर? अंडरस्टूड? ऑलराइट, चलो लेट अस डू द सेकेंड वन नाउ। Second one is 3 7 raised to the power 3 or 3 raised to the power 7. So I will just write the question here, that is 7 raised to the power 3 or 3 raised to the power 7. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट हम लोग ये जो 7 raised to the power 3 है वो 3 टाइम्स लिखेंगे, 1 टाइम, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स यहाँ पे लिखेंगे। और एंड देन यू विल राइट 3 7 टाइम्स, दैट इज 1 टाइम, 2 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स एंड दिस इज 7 टाइम। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 7 विल बी 49। 7 को जब आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर दैट इज 49। और 49 मल्टीप्लाई बाय 7 यू विल गेट द आंसर दैट इज 343। ऑलराइट, यहाँ पे हम लोग को क्या मिला? 343। चलो लेट अस मल्टीप्लाई नाउ। 3 3 ज़ा यू विल गेट द आंसर दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 3 you will get the answer 27। 27 3 is 81। 81 3 is 243। 243 आया। अभी 243 को वापस मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। व्हाट आंसर यू विल गेट हियर? 729। एंड 729 को जब आप वापस मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे यू विल गेट द आंसर हियर दैट इज 2187। ये आपका आंसर ये साइड आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2187। अभी कौन सा बड़ा है? दिस नंबर इज ग्रेटर। सो यहाँ पे आ जाएगी ग्रेटर साइन। सो नाउ लेट अस लाइन दिस क्वेश्चन once again, that is 7 raised to 3 एंड here 3 raised to 7। ग्रेटर साइन यहाँ पे आ जाएगी। आप लिख भी सकते हो, फाइनल आंसर ऐसे भी ले सकते हो, therefore 3 raised to the power 7 is greater than 7 raised to the power 3। Clear? Alright, let us do now the third sum. Third sum is 4. I will write down the question, that is 4 raised to the power 5 or 5 raised to the power 4। ठीक है, चलो let us write now. First I will write 4 how many times? 5 times, that is 1 2 times 3 times 4 times and then 5th time। ठीक है, now let us multiply here only। 4 4 is 16, then 4 4 16, 16 multiplied by 4 is 80, 80 multiplied by 4 is 320 and 320 multiplied by 4 you will get the answer here, that is 1280। ठीक है, and now this 5, ठीक है, यहाँ पे और लिखेंगे 5 we will write how many times? 4 times। So now let us multiply, that is 5 5s are 25, 25 multiplied by 5 will be 125, 125 multiplied by 5 will be 625। So now which is greater? This number is greater, so the greater sign will be here। So 4 raised to 5 is greater than 5 raised to 4। अब final answer लिख सकते हो। Clear? Let us do now the fourth sum। Let us do this fourth sum now. That is, I will write down the question, 2 raised to the power 10 or 10 raised to the power 2। ठीक है, so first what you have to do, you have to write this 2 10 times। So I will write here 2 multiply by 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 2 and multiply by 2। So I hope we have written 10 times, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, or we will write in between 10 we have to write 2 times। ठीक है, so now let us multiply, that is 2 multiply by 2, 4 2 2s are 4, then 4 2s are 8, then 8 2s are 16, then 16 2s are 32, then 32 2s are will be 64, 64 2s are will be 128। Now 128 multiplied by 2 will be 256। ठीक है, now this 256 if you multiply by 2 again you will get the answer, that is 512, and 512 again if you will multiply by 2 you will get the answer, that is 1024। ठीक है, तो here you are getting answer, that is 1024। all right, clear? And here you will get the answer, that is 10 multiplied by 10 is 100। now which is bigger? This number is bigger, so we'll put a greater than sign, that means 2 raised to the power 10 is greater than 10 raised to the power 2। you can write the final answer also। ठीक है, clear till here? Write the following number has power of
2. ओके, तो ये जो आपको नंबर दिया है दैट इज 8, 128 एंड 1024. ये जो नंबर्स है, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट द फॉलोइंग नंबर्स हैज अ पावर ऑफ 2. तो पावर ऑफ 2 लिखने के लिए आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. सो वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन. सो लेट मी राइट दिस. फर्स्ट इज 8th वन. ओके, 8 वी हैव टू राइट हैज अ पावर ऑफ 2. तो 8 का पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे. ऑलराइट, चलो. सो दैट इज 8 कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल. विल स्टार्ट फ्रॉम 2. सो 2 4 8. क्लियर, समझ में आया. 2 4 8. सो आई हैव रिटन 4. नाउ दिस 4 इज डिविजिबल बाय 2. सो 2 2 4 एंड 2 1 2. सो ये जो 8 है, ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या हुए बेसिकली, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. ये जो है वो उसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए. ठीक है, नाउ ये जो 2 है वो कितने बार है, 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3. सो आई विल राइट हियर 2 एंड आई विल राइट द इंडेक्स एज 3. तो ये क्या हम लोग ने किया, बेसिकली हम लोग ने ये 8 को क्या किया, वी रोट इट हैज अ पावर ऑफ 2. क्लियर, समझ में आया. नाउ लेट अस डू 128. द सेकंड इज 128. सो फर्स्ट प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 128 के. सो वी वांट ओनली द प्राइम नंबर्स. ठीक है, सो वी स्टार्ट फ्रॉम 2. सो 2 6 12 and 2 4 8. So 2 64 128. Then 2 32 64. Then 2 16 then 2 8 16. Then 2 4 8. 2 2 4 and 2 1 2. तो ये जो है, ओके, ये क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए. किसके फैक्टर्स हो गए, 128 के फैक्टर्स हुए. कितने टाइम हुए, 1 2 3 4 5 6 7. तो आई विल राइट फर्स्ट ईयर 2 7 टाइम्स. ओके, 2 टाइम्स लिख के हुआ, 3 4 5 6 and 7. So I have written 2 how many times, 7 times. So what I will write now here, I will write 2 raised to the power 7. Clear, understood. Let us do the third sum now. The third sum is 1024. तो 1024 के हम लोग पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. चलो, सो वी स्टार्ट फ्रॉम 2. सो 2 100 डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट दिस आंसर, दैट इज 512. अगेन 2 को डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट दैट इज 256. अगेन इफ वी डिवाइड, अगर 256 को वापस 2 के साथ डिवाइड करेंगे, वी विल गेट द आंसर दैट इज 128. ठीक है, फिर 2 64 128. 2 32 64. 2 16 32. 2 8 16. 2 4 8. 2 2 4 and 2 1 2. ठीक है, clear. Now these are all the factors of 1224. How many times it is, let us count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ठीक है, so now what we will do, we will write here 2 times 10 times, that is 2 multiply by 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 2. ठीक है, so now this we have written 10 times. All right, now we will write 2 here and on the top we will write 10. Understood how to solve this? Now see the next one, that is the 8th one. To what power minus 2 should be raised to get 16? Now they are telling that if you want 16, all right, how many times you should write, what power of minus 2 should be raised. All right, for that what you have to do, again you have to find the factors of 16. So here only I will find the factor of 16, that is 2 8 16, then 2 4 8, 2 2 4, again 2 1 2. So how many factors we are getting, 4 factors we are getting. All right, so what we will do is, but they have told us minus 2. So what we have to write is, you will write here minus 2. How many times will you will write minus 2? 4 times, because here बेसिकली यहाँ पे -16 है, तो यहाँ पे एवरीवेयर इट विल बी माइनस 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 माइनस. ठीक है, तो यू विल राइट हियर -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2. ठीक है, दिस आर द फैक्टर्स. ये तो फैक्टर्स है, तो हम लोग ने अभी -2 लिख के हो गए. तो कितने बार लिखा है हम लोग ने, 4 टाइम्स. तो क्या आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे, -2 रेज टू द पावर 4. तो बेसिकली पावर क्या है यहाँ पे, पावर विल बी 4. ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड हाउ टू डू इट. चलो, लेट अस डू द नेक्स्ट वन, दैट इज द 9th वन. I'll just erase this. All right, now the 9th one is, write the following numbers has a power of -3. तो ये जो numbers दिए आपको, that is 9th one, 20 -27 और 81, इसको क्या लिखना है, you have to write this in a power of -3. so it is similar to the question number 7. तो first number is 9. so 9 का पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, factors निकालना पड़ेगा. so 9 is not divisible by 2, so we take the next number, that is 3. so here 3 3s are 9 and again 3 1s are 3. तो basically 9 के factors क्या आए, 3 आया. ठीक है, पर हम लोग को आंसर किस में चाहिए,
3 में चाहिए. So what we are going to do is we are going to write here -3 multiply by -3. ठीक है. Now we will get the answer that is -3 raised to the power 2. तो जब ये माइनस माइनस बेसिकली 3 3 सा क्या आ जाएगा आपका 9 आंसर आ जाएगा और माइनस माइनस इज प्लस, दैट इज वाई यू आर गेटिंग हियर द आंसर दैट इज +9. क्लियर. नाउ द सेकंड वन इज दैट इज -27. ठीक है. आई विल राइट डाउन द क्वेश्चन दैट इज -27. अभी -27 के हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे. 27 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो वी टेक 3. सो 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3. तो यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे -27 है, तो यहाँ पे सब जगह पे माइनस माइनस ही आ जाएगा. सो हाउ मेनी टाइम्स वी हैव गेटिंग दिस -3 3 टाइम्स. सो आई विल राइट इट हियर -3 3 टाइम्स. ठीक है. और -3 मैं यहाँ पे लिखूंगी कितने बार आया है 3 टाइम्स. सो आई विल राइट हियर द पावर दैट इज 3. क्लियर. समझ में आया. कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इस 27 के फैक्टर्स निकालने हैं. एक बार 27 के फैक्टर्स ये आ गए, दैट इज -3 मल्टीप्लाई बाय -3 यहाँ पे लिखना है. देन -3 लिखना है. कितने टाइम लिखा है 1 2 और 3. सो योर इंडेक्स नंबर विल बी 3. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड सम इज 81. नाउ 81 को भी आपको सेम ही करना है. दैट इज 81 को फैक्टर्स निकालते हैं. नाउ दिस 81 इज इट डिविजिबल बाय 2? इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इट इज डिविजिबल बाय 9, सॉरी बाय 3. सो 3 को जब आप 27 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर दैट इज 81. नाउ 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, माइनस माइनस लगाना है. ठीक है. बिकॉज वी वांट अ पावर एज -3. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. सब जगह पे माइनस माइनस है, सो वी हैव टू राइट हियर माइनस माइनस. ठीक है. क्लियर हो गया यहाँ पे. नाउ अगर सबको अभी आंसर क्या आ जाएगा आपका -3 में आ जाएगा. और एक -3 कितने टाइम से 1 2 3 एंड 4. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4. सो दिस इज योर आंसर दैट इज -3 रेज टू द पावर 4. माइनस माइनस क्यों लिखा है हम लोग ने, बिकॉज दे आर आस्किंग अस टू टेक राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज अ पावर ऑफ -3. तो हम लोग को -3 यहाँ पे इसके लिए लेना है. क्लियर. अंडरस्टूड टिल हियर. ओके. नाउ एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि देखो ये जो नंबर्स है बेसिकली यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है. ठीक है. इसके लिए आंसर यहाँ पे पॉजिटिव है. यहाँ पे आंसर जो है मतलब इंडेक्स जो है वो है ऑड नंबर. इसके लिए यहाँ पे आंसर क्या है, नेगेटिव में है. यहाँ पे जो इंडेक्स है एक्सपोनेंट वो क्या है, वो इवन नंबर में है. इसके लिए आंसर क्या आया, पॉजिटिव में आया. ठीक है. तो जैसे कि हम लोग ने सीखा था कि जब भी इंडेक्स है एक्सपोनेंट एक ऑड नंबर होता है तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है. पर अगर एक इंडेक्स या एक्सपोनेंट इवन नंबर में आता है तो आंसर भी हमेशा पॉजिटिव में. क्लियर टिल हियर. ऑलराइट. चलो लेट अस डू द नेक्स्ट वन नाउ. द नेक्स्ट वन दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग. तो आपको ये जो x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके. सो ना फर्स्ट वन हमारा क्या है, दैट इज 7 रेज टू, आई विल राइट डाउन द क्वेश्चन, 7 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 343. अभी हम लोगों को क्या करना है ना, ये जो 343 है, ठीक है, इनका फैक्टर्स निकालना है. पर यहाँ पे हम लोग को लेना है 7. ऑलराइट. सो लेट अस डू इट. दैट इज 7. अगर आप इसको 7 के साथ डिवाइड करोगे यू विल गेट द आंसर दैट इज 49. सो 49 7 ज़ा 343. नाउ लेट अस डिवाइड 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7. तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने इसके फैक्टर्स निकालना स्टार्ट किए. बट वी स्टार्टेड विद विच नंबर, वी स्टार्टेड विद द नंबर दैट इज 7. क्लियर. अभी हम लोग को इसके क्या फैक्टर्स आ गए, वी विल राइट दिस 7x एज इट इज़. और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये पूरे फैक्टर्स लिखेंगे. ठीक है. दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7. नाउ 7 हम लोग ने यहाँ पे एक बार लिखेंगे. और कितना टाइम 7 आया है, 1 2 और 3. सो इंडेक्स क्या रहेगा हमारा, 3 रहेगा यहाँ पे. ठीक है. सो बेसिकली ये जो x है उसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 3. क्लियर. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दैट इज x इज इक्वल टू 3. ऑलराइट. तो मतलब x इज इक्वल टू 3 मतलब क्या, ये 7 को अगर आप 3 टाइम्स करोगे दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, आपका ये आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 343. क्लियर कैसे करते हैं, लेट अस डू द सेकंड सम नाउ. तो आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे. आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ x. नाउ द सेकंड सम इज दैट सेकंड सम इज 3x इज इक्वल टू 729. तो हम लोग को ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. कि 3 को आप कितने बार मल्टीप्लाई करोगे कि आपको ये आंसर मिलेगा. इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो 729 है इसका प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा. ठीक है. और यहाँ पे हम लोग लेंगे 3. वी कैन नॉट टेक एनी अदर नंबर, वी हैव टू टेक 3 क्योंकि यहाँ पे बेस जो है वो 3 है. क्लियर. चलो 729 को जब आप 3 के साथ डिवाइड करोगे यू विल गेट द आंसर हियर दैट इज 243.
3। अगेन आपको यहाँ पे 3 के साथ डिवाइड करोगे यू विल गेट योर 81। अगेन 3 के साथ डिवाइड करोगे यू विल गेट योर आंसर दैट इज 27। अगेन 3, हियर द आंसर विल बी 9। अगेन 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो ये 3 कितने टाइम आया? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे 3x इज इक्वल टू, सॉरी आई विल जस्ट राइट दिस वंस अगेन, 3x is equal to 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3। ओके, हो गया लिख के। सो 3 दिस 3 यहाँ पे कितने टाइम आया? 6 टाइम। सो आई विल राइट हियर x। सो 3x इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 6। सो x इज इक्वल टू 6। अगर ये स्टेप आप नहीं लिखना चाहते हो तो भी चलेगा। ठीक है, क्लियर? आपको क्या फाइंड आउट करना है? ये x की फाइंड आउट करना है और ये x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 6 है। क्लियर? ऑलराइट, चलो लेट अस डू द नेक्स्ट वन नाउ, द थर्ड सम। द थर्ड सम इज -8. I will write down the question. -8 raised to the power of x is equal to -512। अभी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे माइनस आया है। ऑलराइट, चलो तो हम लोग कैसे करेंगे? सब पॉजिटिव नेगेटिव बाजू में रखते हैं, पहले इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, फिर 8 को आपको 8 लेना है। 8 क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर 8 है, इसके लिए यू हैव टू टेक द नंबर हियर ऑल्सो एज 8। सो 8 को जब आप 512 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट आंसर है 64। 64 8 जा 512। ठीक है, फिर 8 8 जा 64, 8 1 जा 8। तो यहाँ पे जो 8 है वो कितने बार आया है? 3 टाइम्स। ओके, 3 टाइम्स 8 आया है, तो बेसिकली 8 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 3 है। ऑलराइट, सो वी विल राइट हियर -8x। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3, ये आया 3 की x की वैल्यू। क्लियर? समझ में आया कैसे करना है? इट इज़ वेरी इजी, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो यू कैन आराम से सॉल्व इट। ओके, नाउ हियर इट इज़ -4 रेज टू द पावर ऑफ x -1024। चलो, सो 1024 का हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सो कैसे निकालेंगे? 4 लेना है हम लोगों को। ठीक है, सो बेसिकली दिस नंबर वी हैव टू डिवाइड बाय 4। सो जब हम डिवाइड करेंगे दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 256, हम लोग को ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय दिस, डिवाइड बाय 4। सो 4 को जब आप 64 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस आंसर। अगेन 4 16 जा 64, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे 4 के फैक्टर्स कितने टाइम आ गए? 1 2 3 4 5। सो वी विल राइट हियर 4 5 टाइम्स। ठीक है, हो गया लिख के। सो नाउ बेसिकली 4 क्या है? 4 इज टू द पावर 5। 5 टाइम्स है ना, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे 5 लिखा। तो बेसिकली x की वैल्यू क्या आई यहाँ पे? 5 आई। क्लियर हाउ टू सॉल्व इट? ठीक है, समझ में आया? लेट अस डू द नेक्स्ट सम नाउ। द नेक्स्ट सम दैट इज द फिफ्थ सम इज 2 divided by 5, let is 2 upon 5 raised to the power of x is equal to 32 upon 3125। ठीक है, यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग? पहले हम लोग, नाउ यू डोंट हैव टू गेट स्कैर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि एक बात हम लोग ये जो है वो वैसे के वैसे लिखेंगे। ऑलराइट, अभी हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे x लिखते हैं। ठीक है, नाउ हियर वी वांट अ नंबर जिसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे हियर यू शुड गेट 32 एंड हियर यू शुड गेट 325। ऑलराइट, तो एक इजी वे क्या है मैं आपको बताती हूँ। आप क्या करो, पहले 32 के ये फैक्टर्स निकालो। ठीक है, 32 के फैक्टर्स निकालते हैं। यहाँ पे 2 न्यूमरेटर में है, सो वी विल राइट हियर 2 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड देन 2 1 जा 2। तो ये जो 2 आया वो कितने बार आया? 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स आया। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट 2 5 टाइम्स। ठीक है, अभी ऊपर अगर 5 टाइम्स आया तो आपको एक चीज़ याद में रखने की, जो 5 है ये भी यहाँ पे कितने बार आ जाएगा? 5 ही टाइम्स आ जाएगा। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये करने के बाद व्हाट आंसर डिड वी गेट? 2 को हम लोग ने कितने बार लिखा हुआ है? 5 टाइम्स लिखा है। सो 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू कितने बार आया? 5। सो देयरफॉर द x की वैल्यू क्या हो गई? 5। ठीक है, अंडरस्टूड? तो ये 2 हम लोग को कितने बार मिला? 5 टाइम्स ना, 1 2 3 4 5। इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे 5। क्लियर? सो x की वैल्यू क्या हम लोग को मिली? 5। सो इवन दिस इज अ फ्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज। इनफैक्ट दिस इज अ इजियर वन। ठीक है, नाउ लेट अस डू द सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वन क्या है? -3 अपॉन 4 रेज टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू -243 डिवाइडेड बाय 1224। ठीक है, अभी नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। आपको क्या करना है? इसके फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, सो लेट अस रिमूव द फैक्टर्स ऑफ 243। यहाँ पे लेंगे हम लोग 3। सो जब हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा था ना 81, 3 जा कितना आता है? 243 आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 81, फिर 3 27 जा 81, देन 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड देन 3 1 जा 3।
तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो फैक्टर्स क्या आए, दिस आर आर फैक्टर्स, ठीक है। कितने बार आए, 3, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम्स आए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ऊपर अगर हम लोग 3 5 टाइम लिखते हैं, सो डाउन ऑल्सो यू हैव टू राइट फॉर हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, यू विल गेट द आंसर हियर, दैट इज यही आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। नाउ 3 को आपने कितने बार लिखा हुआ है, 5 टाइम्स। 4 को भी क्या लिखा हुआ है, 5 टाइम्स। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 5। तो बेसिकली x की वैल्यू क्या होगी, आपकी 5 हो गई। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 11, वी विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।